Ashok Saab said Vande Mataram, and we feel something different when we sang Vande Mataram. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, एक चीज रह गया कि व्हाट इज आवर नेशनल एंथम. Entire freedom movement was based on Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. There was a movie, Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. There was a newspaper from the Lahore, that was the Vande Mataram. Ram Prasad Bismil wrote a ghazal, Vande Mataram. So everything, it was like a war cry, Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. On the last day, 24th January 1950, entire constitution was over. Only one thing was left, that was what is our national anthem. Even the Congress meeting was, generally it started with the Vande Mataram. There was no use of Jan Gan Man even in the Congress meeting. And even 1985, 86, 87, Guru Rabindranath Tagore sang Vande Mataram. कांग्रेस के अधिवेशन में जनगण मन नहीं गाया जाता था, कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता था. On the last day, that is the 24th January 1950, there was a situation that no, we want voting on this issue. Similarly, if voting happened, definitely Vande Mataram won. Then Dr. Rajendra Prasad taken a middle path. He told, let's do one thing. Let the Jan Gan Man and Vande Mataram both are our national anthem. So technically, Vande Mataram and Jan Gan Man both are our national anthem. And if you Google a PIL, my PIL is pending in the court, where I have filed that why Vande Mataram is not, there is no any protocol to sing Vande Mataram. We have a protocol for Jan Gan Man, that it will be 52 seconds. This music is fixed, how to sing, everyone will stand. There is a protocol, but there is no protocol for Vande Mataram. So my PIL is pending there. If you Google the Vande Mataram Ashwini Upadhyay, you will find it, where I am seeking that there should be a protocol, there should be standard music, and if someone insert Vande Mataram, there should be some punishment also. That matter is going on. You know, this is the Constitution of India. Huh? It is Constitution of, please, हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, हम आप लोगों से डायलॉग करने आए. मैं जब भी कुछ पूछूं, इतना जोर से बोलिए, आपकी आवाज यहां तक आए. और यहां तक क्यों आए मैं आपको बता रहा हूं. मैं केवल आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग 1 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं. 1 करोड़ से कैसे कह रहा हूं? क्योंकि आपके इस प्रोग्राम की छोटी छोटी क्लिप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएगी. मेरे टेलीग्राम चैनल पे देश के और यूएस वगैरह के लगभग 500 यूट्यूबर जुड़े हुए हैं. तो वो अपने अपने यूट्यूब पे डालेंगे, अपने अपने फेसबुक पे डालेंगे. तो हमारी आपकी बातचीत आज जो कुछ होनी है वो लगभग 1 करोड़ लोगों तक जाएगी. 5 मिलियन हमारी रीच है, जो मेरे खुद की फेसबुक की रीच है मंथली. मेरे फेसबुक की खुद की रीच 5 मिलियन की है, लेकिन टोटल 1 करोड़. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सुनिए मत, इतना जोर से बोलिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि चेन्नई में एक प्रोग्राम हुआ है और चेन्नई की आवाज इधर तक आ रही है. सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत. यस, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरब. इज इट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरब? नो. Is it Constitution of UK? No. Constitution of US? No. It is Constitution of Bharat. So, what is the constitutional ethos? The constitutional ethos is
to protect dignity of Bharat, to protect and promote identity of Bharat, to protect and promote religion of Bharat, to protect and promote language of Bharat, to protect and promote culture of Bharat. So Constitution says, this Constitution directs the governments, this Constitution directs the central government and the state government, this Constitution directs MLA, MP, every public servant that please you protect and promote identity of Bharat. You protect and promote unity of Bharat. You protect and promote integrity of Bharat. So protect and promote identity, dignity, religion, culture, custom. You have to weed out casteism. You have to weed out communalism. You have to weed out regionalism. You have to weed out linguism, which Ashokji says. So this is the duty of MLAs, MPs, Home Minister, Chief Minister, State Minister, Central Minister, everyone, to weed out corruption, casteism, communalism, regionalism, linguism, etc., etc. But who is spreading casteism? Who is spreading casteism? Politicians, who are supposed to strengthen the unity and integrity of Bharat, are promoting and propagating casteism. Who are supposed to promote and propagate identity of Bharat, unity of Bharat, custom of Bharat, tradition of Bharat. They are promoting linguism. No Hindi, Tamil. And unfortunate, they love foreign language. They speak in foreign language. Even I am speaking right now foreign language. The person, the political parties who are opposing Indian language are supporting and propagating and promoting foreign language. The politicians who are opposing Indian culture, Indian tradition, Indian custom are promoting, propagating foreign custom, foreign religion in the name of secularism. In the name of secularism. अगर आपका ड्राइवर आपसे 15,000 रुपए ले लेकिन गाड़ी न चलाए और गाड़ी उल्टी चलाए, फॉरवर्ड गियर की बजाय रिवर्स गियर में चलाए, तो क्या आप बोलोगे? बहुत नमक हराम है. क्या है? यू अंडरस्टैंड हराम? बहुत नमक हराम है. Like it is duty of the doctor to give medicine in the best possible way, best medicine. It is duty of the driver to drive the vehicle in the safest way, in the best way. It is duty of the barber to cut the hair in the best way. It is duty of our dry cleaner, dhobi, to clean the clothes in the best way. So what is the duty of the MLAs, MPs? What they take the oath? इसमें शपथ लेते हैं. Constitution में there is Schedule 3, there is oath. I saw स्वामी जी क्या लेते हैं oath? I will uphold the constitutional ethos. I will uphold the constitutional morality. I will uphold the constitution. I will act in the spirit of the constitution. So what is the constitutional ethos? What is the constitutional morality? What is the constitutional obligation? What is the constitutional duty? To minimize corruption, casteism, communalism, linguism, religionism, and promote Indian culture, Indian tradition, Indian language, Indian religion. This is their duty. But they are doing just opposite. Not everyone, but most of.
You may consider your state, you may consider, just you imagine about your MLA, just you imagine about your MP, what he is doing. I don't know whether your MLA and MP is doing in the spirit of the constitution, whether your MLA MP is doing in the oath of the, in the spirit of the oath of the constitution, otherwise just doing opposite. You analyze. You means not only the person sitting in the hall. Because I am talking for the country. Why they are doing it? Why the person who are supposed to minimize casteism are promoting caste? Why? Please speak. Why they are dividing us? Vote bank. Why they want to vote? Please speak loudly. Please speak. Why they are dividing us? For vote? Vote bank. What is the purpose of vote bank? Power. What is the purpose of power? To loot. To loot your hard-earned tax money. This is the fact. The total budget of Bharat is 74 lakh crore this year. Last year it was 70 lakhs crore. This year it's 74 lakhs crore. So on an average, 20% is the commission money. On an average, minimum 20% goes in every department, whether it's a PWD or the health department or education department, every department, 20% corruption. So means if we take the 70 lakh crore, 20% of 70 lakh crore is the 14,000 crore. 14 lakh crore. तो 14 लाख करोड़ आपका दिया हुआ पैसा हर साल लुट जाता है। आप अपने बेटे को 500 रुपए देते हो, अगले दिन आके कहता है पापा 500 रुपए और दे दो, तो पूछते हो कल तो दिया था वो क्या किया? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? नाई को 50 रुपए देते हो बाल कटवाने का, बोले नहीं 60 दे दो, बोले क्यों 60 दे दे भाई, 50 रुपए होता, 50 रुपए लो, 60 क्यों देना? घर में काम वाली को 3000 देते हो, उसका ईयरली ही इंक्रीमेंट करते हो, रोज रोज नहीं करते। लेकिन आपका दिया हुआ हर साल 14-15 लाख करोड़ रुपए जा रहा है, उससे ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं, यूके में फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं, अमेरिका में फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े बंगलो बन रहे हैं, कनाडा में बंगलो बन रहे हैं, ब्राजील में बंगलो बन रहे हैं, और आपको चिंता ही नहीं है। 500 रुपए भतीजा मांग ले तो देने में सोचते क्यों दे, 500 रुपए एक्स्ट्रा नाई मांग ले तो देने में सोचते क्यों दे, धोबी मांग ले 100 रुपए ज्यादा तो देने में सोचते क्यों दे। और यहां वो आपसे 15 लाख करोड़ ले जा रहे, फिर भी उनको माला भी पहना रहे, बोले जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उनको बर्थडे को बुला भी रहे, साहब आ जाना, बर्थडे पे आ जाना, साहब शादी में आ जाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, प्लीज, there are honest politicians, there are very nationalist politicians, there are very karmi yogis, not out. But just you think about your MLA and MP. I am not asking you to think about everyone. Just you think about your MLA and MP. Recently I filed a PIL in the Supreme Court seeking a renaming commission. Matter came. I told him that it's not a matter of simple matter of renaming. It's a matter of our fundamental duty, fundamental right. It's a matter of sovereignty. It's a matter of right to identity, right to dignity, right to culture, right to religion, right to tradition. What is happening? जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, जिन स्थानों का नाम, वो स्थान आज भी एग्जिस्ट करते हैं 2000 साल के बाद भी, उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए अगर आप बाइबल को कोई कहे तो मिथ है, बोलेंगे नहीं मिथ नहीं, देखो इसमें ये लिखा हुआ, ये जगह यहां उपलब्ध है। What is written in the Quran, the same place exists as it is in the same name even after 1400 years. तो कोई कुरान को मिथ नहीं कह सकता, बोले देखो इसमें लिखा हुआ है ना, फला मक्का लिखा है, मक्का है, मदीना लिखा है, मदीना है। बट
Unfortunately, even our children now doubting our Mahabharata, Ramayana. Why they are doubting? Because the places mentioned in the Mahabharata, in the Ramayana, in the Valmiki, in the Shiv Puran, in the Skanda Puran, does not exist. भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, याद है आपको महाभारत में? 5 villages. One was Indraprasth, one was Tilprasth, one was Panprasth, one was Vyagprasth, one was Sonprasth. You search these 5 villages, you will not get. Because Indraprasth became Delhi, Sonprasth became Sonipat, Panprasth became Panipat, Vyagprasth became Bagpat, and Tilprasth became Faridabad. One dacoit, one barbaric dacoit, who destroyed our temple in the Tilprastha, who killed our fathers, even who raped our mothers, who looted our gold, and changed the nameplate, made Tilprastha to Faridabad. Unfortunately, our MLAs, MPs, who are supposed to promote and propagate Indian culture, Indian tradition, Indian ethos, Indian morality, Indian tradition, Indian religion, Indian language, never discuss this issue in Parliament and the Assembly. This is their duty. This is not my duty. This is their duty. Because they are getting salary, pension, security guard, big bungalow, etc., etc. for what? Just only to cut the ribbon? What is their duty? What is their duty of? They are public servant. MLAs and MPs are public servant. Judges are public servant. High Court judges are public servant. Supreme Court judges are public servant. IAS officers are public servant. Everyone is a public servant. So what is the duty of the public servant? Serve the public. But they are not performing their duty religiously, honestly. In fact, most of them are doing just opposite. We know the birthplace of Lord Krishna, but we don't know the birthplace of Rukmini. Where is the birthplace? That does not exist in the same name. We know Lord Parasurama, the 6th incarnation of Lord Vishnu. Do you know the birthplace of Lord Parasurama? No, we don't know. This was the duty of the governments. This is the duty of the government, state government, central government, to identify our religious places, which are mentioned in our Vedas, Purans, Gita, Ramayana, Valmiki Ramayana, etc. Rishi Jamdagni is the father of Lord Parasurama. Last week I visited that place. There is a place in Uttar Pradesh, and name was the Jamdagni Puram. It is just near the river Gomti. Mother name is the Renuka. भगवान परशुराम के माता का नाम रेणुका है और भगवान परशुराम के पिताजी का नाम ऋषि जमदग्नि। गोमती नदी के किनारे, नदी के एक तरफ माता रेणुका का बर्थ प्लेस है और नदी के दूसरी तरफ महर्षि ऋषि जमदग्नि का आश्रम है. One invader named Jona Khan. Jona Khan went there, invaded the Jaunpur, destroyed the temples. There is, in fact, there is a one temple dispute also there, Atala. I don't know whether someone from the UP here. उसने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया, उसका नाम है अटाला मस्जिद, जिस पे डिस्प्यूट भी चल रहा है. और उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया. विदेह, राजा जनक, the father of Mata Sita, he established a city named Videha. One Muzaffar Khan went there.
He looted the Videh, changed the name plate, made Videh as the Muzaffarpur in Bihar. जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे तो आपको याद होगा, महाभारत देखा होगा, वो विराट नरेश के यहां रुके थे, याद है आपको? जब उनका अज्ञातवास चल रहा था वो विराट नरेश के यहां रुके थे। एक होशियार खान नाम का लुटेरा गया, लूटा, तोड़ा, रेप किया, मर्डर किया और उसके बाद नेम प्लेट चेंज कर दिया। विराट को उसने होशियारपुर बना दिया। अब आप ये बताइए, इसको बदलना सरकारों की ड्यूटी है कि नहीं? सांसदों की ड्यूटी है कि नहीं? 100%। अगर वो नाम नहीं बदले तो हम इसमें हाउ वी कैन से वी आर ए सोवरेन कंट्री? इट इज रिटन इन द प्रीएम्बल, वी आर ए सोवरेन कंट्री, हम एक स्वतंत्र देश हैं। अरे लुटेरों का नेम प्लेट हम हटा नहीं पा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। डकैतों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का नेम प्लेट हम हटा नहीं रहे और कह रहे हैं वी आर सोवरेन कंट्री। यू नो दैट व्हाट इज व्हाई द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन तमिलनाडु एंड यूपी एंड बिहार? आप लोगों की शादी दिन में होती है कि रात में होती है? यूपी बिहार में रात में होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग मुगलों के गुलाम थे। हम एक चीज समझ लीजिए, 1000 साल पहले जो तमिलनाडु का कल्चर था वही यूपी का कल्चर था, वही बिहार का कल्चर था, वही बंगाल का कल्चर था, वही हरियाणा का कल्चर था, वही राजस्थान का कल्चर था। वेद में लिखा हुआ है हमारे सारे के सारे जो 16 संस्कार हैं वो दिन में ही होना चाहिए, सूर्य की रोशनी में होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार भी पाप माना गया। बट वी एडॉप्टेड द नाइट मैरिज। व्हाई? क्योंकि वो दिन में उठा लेते थे। तमिलनाडु में आज भी मंदिर है, जैसे भव्य मंदिर तमिलनाडु में है ऐसे भव्य मंदिर यूपी और बिहार में भी थे। तमिलनाडु का बच गया क्योंकि मुगल यहां आए नहीं। उसमें बहुत बड़ा योगदान शिवाजी महाराज का था, जिन्होंने महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनको रोक दिया था। लेकिन यूपी बिहार के खत्म हो गए, हरियाणा का खत्म हो गया, बंगाल का खत्म हो गया, आपका इधर राजस्थान वाले में मंदिर टूट गए। तमिलनाडु में मंदिर में शादी होती है, ज्यादातर मंदिर में होती है ना। पहले पूरे भारत में मंदिर में शादी होती थी। टेम्पल वाज आवर रिलीजियस सेंटर, कल्चरल सेंटर, ट्रांसमिशन सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर, एजुकेशन सेंटर, हेल्थ सेंटर। जहां मंदिर होता था वहां एक गुरुकुल होता था, एक गौशाला होती थी, एक वेधशाला होती थी, एक व्यायामशाला होती थी, एक आयुर्वेदशाला होती थी, एक यज्ञशाला होती थी, एक विवाहशाला होती थी। लेकिन वो खत्म हो गया। किसने खत्म कर दिया? मुगलों ने। जिन मुगलों के कारण नॉर्थ और साउथ इंडिया में कल्चरल डिफरेंस आ गया, जिन मुगलों के कारण नॉर्थ और साउथ के कस्टम में, कल्चर में, ट्रेडिशन में डिफरेंस आ गया, उन मुगलों को हमने जिंदा किया हुआ है। जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को बांट दिया, उनको हमने जिंदा रखा हुआ। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? और मैं आता हूं, चलो सरकारों ने जो किया तो किया, आते हैं जरा हम कोर्ट के ऊपर। शेड्यूल 3 में सबकी ओथ है, एमएलए ओथ, एमपी ओथ, हाई कोर्ट ओथ, हाई कोर्ट जजेस ओथ, सुप्रीम कोर्ट जजेस ओथ, प्राइम मिनिस्टर ओथ, चीफ मिनिस्टर ओथ। देयर इज ए फॉर्म ऑफ ओथ। व्हाट इज द ओथ ऑफ द जजेस? आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। I will uphold the constitution means I will uphold constitutional morality. I will uphold constitutional ethos. This constitution is the for Indian, for Bharat, by Bharat, not for the foreign. This constitution is not meant to protect the identity of Mughals. This constitution is not meant to identity of Babar, Humayun, Ghazni, Ghori. But it's very unfortunate that our MLAs, MPs and judges, High Court judges and Supreme Court judges have Bangalore on the Babar Road.
Humayun Road in Delhi. Tughlaq Road. Rahul Gandhi Bangla is the Tughlaq Road. He behaved like Tughlaq also. Sometime Delhi, sometime Daulatabad, sometime Delhi Sultan. Just you think, हमें बाबर का नाम लेने में शर्म आती है और इन लोगों को बाबर रोड पर रह के अपना पता बताने में शर्म नहीं आती है. I don't know how they feel that my residence number is 22nd Babar Road. My residence number is 5 Aurangzeb Road. What is the Bangalore number? 6 Lodhi Road. What is the Bangalore number? 6 Humayun Road. 8 Shahjahan Road. और ये जितनी सड़कें हैं दिल्ली की, इनको किसी को मुगलों ने बनाया नहीं था. ये बाबर रोड, हुमायूं रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, तुगलक रोड, जितनी दिल्ली में सड़कें हैं, इसको एक भी मुगलों ने नहीं बनाया. कुछ अंग्रेजों ने बनाया, बाकी की सारे नए वाले अंग्रेजों ने बनाया. कुछ 47 के पहले वाले अंग्रेजों ने बनाया, कुछ 47 के बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया. जानते हैं उन्होंने क्यों बनाया? उन्होंने इसलिए बनाया, इनके नाम पे बना दो, जब कल को लोग विरोध करेंगे तो देयर विल बी क्लैश. There will be clash. Just to divide and rule. हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है सत्यमेव जयते. हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, सबकी चेयर पे लिखा होता है सत्यमेव. और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जय. दिस इज द श्लोक. एवरी सुप्रीम कोर्ट जज चेयर, इट इज रिटेन इन बोल्ड लेटर्स, यतो धर्मस्ततो. जहां धर्म होगी वहीं. अब ये बताओ, मैं कह रहा था इन आक्रांताओं का नाम हटाओ. ये आक्रांता धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है? बताइए ना. अधर्म के साथ. ये अधर्मी है, धार्मिक है? ये चेयर पे लिखा है जिसपे बैठते हैं यतो धर्मस्ततो, तो उनकी ड्यूटी क्या है? जहां धर्म हो वहीं जय होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है. इस आर्टिकल 142, वेरी स्पेशल पावर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस. This power is not only with anyone. Even Prime Minister don't have the power like Article 142. 142 power is only for the Supreme Court judges, which says to ensure complete justice, Supreme Court can use this power. Supreme Court judges can use this power under Article 42 to ensure complete justice. I was there. I told the court, please, this change of name, I requested him to direct the Home Ministry to constitute a renaming commission, because what is going on, names are being changed but in a piecemeal manner, in a political reason. Like they are changing the name but they are not changing in the original way. They are changing their like political party, like Mayawati is doing Jyotiba Phule Nagar, Gautam Buddha Nagar, like this. My request is, please you change the name what is mentioned in the Mahabharata, Gita, Ramayana, so we can easily identify the place. So that's why you constitute a renaming commission consisting the archaeologists, social activists, judges, advocates, journalists. You take the experts from all the field and let the commission examine the issue. I told also the court, it's not the matter of simple change, it's a matter of sovereignty. It's a matter of my right to dignity. It's a matter of my right to identity. It's a matter of my right to religion. It's a matter of my right to culture. And it's a matter of my right to information, right to know about the original names of the places. These are the constitutional fundamental rights. Supreme Court, I told that very important matter, so please permit me to give my petition to the Attorney General and Solicitor General and let them file the reply. No.
you argue the case. I need at least one day to argue this case. No, you finish in half an hour. How can I finish half an hour? It's such an important matter. It has a national ramification. I have to cite so many judgments. I have to cite around 40 judgments on this issue. So please give me a full day. No, you start arguing the case. Ultimately, they permitted me to complete the argument in half an hour. I completed my argument in half an hour. They pass a judgment saying that we cannot grant such a prayer under Article 32. So that is judgment is over. I have some other ways. I will find out the other ways also. There are other ways. But what I am saying, when Constitution says you are the custodian of fundamental right, and you have the power under Article 142, and you say yato dharmastato jaya, you are sitting on the chair which says yato dharmastato jaya, then this is your duty to find out the roots, find out the ways to ensure that dharma wins. This constitution, I told the court, please appreciate that this constitution is not meant for the Babar, Humayun, Aurangzeb, Ghazni, Ghori. They looted and gone. But judgment says it's a finger on one community. One thing I would like to clarify today. Even after judgment was published day before yesterday, उसके बाद मैं किसी पब्लिक प्रोग्राम में गया नहीं, लेकिन आज मैं चेन्नई से कह रहा हूं, मैंने अपने पिटीशन में एक भी बार किसी कम्युनिटी का नाम ही नहीं लिया था. I don't know why the judges found the community there. I took only the names. I used the words barbaric. I used the words rape. This is a fact. They raped. They murdered. There was a jauhar. Everything was. This is a fact. So I only use the fact. I not used even once Muslim. But judgment says this petition raises a finger on one community. I don't know how the justices found the finger on one community. I just use the. This is the other fact that all these barbaric invaders are from the one community. This is the fact. This is the fact. This all the barbaric invaders are from one community. साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप राइट टू रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे. सवाल यह है कि दुनिया में 1000 रिलीजन है. कितने रिलीजन है? 1000. तो ये संविधान 1000 रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है या जो भारत में शुरू हुए उनकी बात करता है? जरा जोर से बोलिए. भारत में शुरू है उनकी बात करता है. मैं दोबारा रिपीट करता हूं. दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं. 6500 लैंग्वेजेस आर देयर. ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दिस इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लैंग्वेजेस. नाउ द क्वेश्चन इज, all the 6500 languages are the languages of India. भारतीय भाषा. ये भारत का संविधान है, खाड़ी देशों का संविधान नहीं है, चाइना का संविधान नहीं है, कोरिया का नहीं है, भारत का संविधान है. स्वाभाविक सी बात है, भारत की भाषाओं के लिए प्रमोट और प्रोपोगेट करता है. ऐसे ही जब रिलीजन की बात आएगी तो कौन से रिलीजन को प्रमोट और प्रोपोगेट करने की बात करेगा? ये There is one act, Places of Worship Act. Name is very fine, Places of Worship. नाम से ऐसे लगता है कि टेम्पल्स के रखरखाव के लिए बनाया हुआ है. Places of Worship Act. It seems like this is for meant to manage, maintain, administer the places of worship. I challenge that act. It was made in 1991. That matter is going on in the Supreme Court. Dr. Swami is also with me. His second petition is Dr. Subramanian Swami. But he wanted only 2 temples. I want all the temples free. In the Supreme Court he says, if you accept my petition and you free 2 temples, Kashi and Mathura, then we will not claim. I told no. There are so many temples. So many temples even in Tamil Nadu also.
in Kerala also, and temples in Tamil Nadu is equally important than the Kashi and Mathura. How we can say Kashi Mathura is, yes, definitely it's important, it's a birthplace, but so many temples are there. So why should we compromise on the two temples? This is matter of our right to religion. It's a very interesting place of prayer and place of worship. The act name is place of worship, but it is made to protect place of prayer. Please remember, mosque is a place of prayer. It's not place of worship. Church is the place of prayer, not place of worship. Temple is a place of worship. That's why once a temple, always a temple. Temple character never changes. Once a temple, always. इवन टेम्पल न भी हो, मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ हो, हिंदी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पीपल का पेड़ है, मैंने वहां पे भगवान एक शिवलिंग स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अब अगर बाई द वे टेम्पल जो पीपल की डाल कोई टूट जाए तो टेम्पल का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। पीपल का पेड़ उखड़ जाए तो नहीं, टेम्पल रहेगा, कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। तो वैसे ही मंदिर में किसी ने आके ढांचा गिरा दिया, गुंबद गिरा दिया, दीवार तोड़ दिया तो टेम्पल कैरेक्टर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। वंस ए टेम्पल ऑलवेज, वंस ए मॉस्क ऑलवेज ए मॉस्क नहीं। खाड़ी देशों में तो हर साल 1000-2000 तोड़ देते हैं, सड़क बनाने के लिए तोड़ते हैं, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए तोड़ते हैं, एयरपोर्ट बनाने के लिए तोड़ते हैं, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए तोड़ देते हैं, बिकॉज दैट इज द प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपल प्लेस ऑफ प्रेयर। ये अपना कॉलेज है, अभी अशोक साहब कह दें कि काम करो भाई, ठीक है, ये वाला हॉल प्लेस ऑफ प्रेयर के भी काम आ जाएगा, एक काम करो फला दिन जिसको प्रेयर करना आ जाओ, प्रेयर कर लो। ये लेकिन इनको जरूरत पड़ेगी, इसको बदल देंगे भाई, देखो अब इधर अब तो इधर ऑडिटोरियम होगा, अब इधर कुछ और ही चलेगा, उधर चले जाओ। एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ प्रेयर होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप। रेलवे स्टेशन पे प्लेस ऑफ प्रेयर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब जैसे ही आपने पूजा कर दिया, उस जमीन के मालिक भगवान हो गए, वो डीटी हो गए, शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, राम हो गए, जिनकी भी आपने प्राण प्रतिष्ठा किया। जब एक बार वो मालिक हो गए तो दोबारा आप मालिक कैसे हो गए? जब आप मालिक नहीं हुए तो आप कंप्रोमाइज करने वाले कौन होते हो? आप उनसे एग्रीमेंट करने वाले कौन होते हो? आप उस जमीन को किसी को देने वाले कौन होते हो? हो गए तो हो गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस तरीके का कानून बना के 1991 में सरकार ने कौन कहे कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरिन जो मंदिर तोड़ा उनको रिस्टोर करने को एक कानून बना दिया है, हमारा राइट टू रिलीजन छीन लिया है, हमें कोर्ट जाने से रोक दिया है, राइट टू जस्टिस छीन लिया है, हमारी राइट टू डिग्निटी छीन गई है। अरे हम कहते हैं हमारे अंदर क्या है? आत्मा, यही तो बोलते हैं आत्मा, और हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। आपने अगर हमारा परमात्मा छीन लिया, हमारा प्लेस छीन लिया, प्लेस ऑफ वर्शिप छीन लिया, हम तो कहते हैं हम अंदर भी पूजा करते हैं। जब आत्मा अंदर है तो परमात्मा आत्मा एक ही है, तो हम तो अंदर भी पूजा करते हैं और बाहर भी पूजा करते हैं। हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय माई प्लेस ऑफ वर्शिप, change my character, how you can change the character of my place of worship? That matter is going on the Supreme Court. What I am saying, the governments, MLAs, MPs who are public servant, who are supposed to do public duty, who are supposed to promote and propagate Indian religion, Indian language, etc. I don't know whether they are getting some funds from foreign, I don't know. This is a question of law. This has to be identified. But I don't know. But definitely they are promoting foreign languages, foreign religion, foreign custom, foreign tradition, foreign culture in the name of secularism.
This is going on. And why going on? Because we are divided. Because we are divided. They succeeded in to divide us on the basis of caste, language, etc., etc. Now there is a path is very open. एक बार बांट दिया, उनको पता है तो बट गए, अब इनको जो करना है कर लो। एक आदमी मंदिर के लिए लड़ेगा तो बाकी नहीं आएंगे, एक आदमी वक्फ बोर्ड के लिए लड़ेगा तो बाकी नहीं आएंगे, कोई इसके लिए लड़ेगा तो बाकी नहीं आएंगे, सारे एक होके आएंगे नहीं, तो बांट लो। So how to control? What is the solution? I am engineer. I was in Maruti. So I have a very discussion with the Japanese people. There is a one term, reverse engineering. There is a one term, reverse engineering. They generally use in Japan. आपको जापान की गाड़ियां आपको ना ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस फ्री होती हैं। सामान्यतः आपको देखा होगा मारुति, होंडा, टोयोटा, इनमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, मेंटेनेंस फ्री होती है, बस तेल भराओ, सर्विस कराओ, चलते रहो। क्यों होता है? एक बार जो प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम ठीक करने के पहले कहते हैं यू डू द वाई एनालिसिस, यू डू द रूट कॉज एनालिसिस, यू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैन फेल्योर, इट्स अ मेथड फेल्योर, मटेरियल फेल्योर, machine failure, what is the problem? And they do this why analysis on every aspect, even the social problems are. So their finding is, if you don't have the solution in the forward way, you find out the solution in the reverse way. मैं आपसे पूछता हूं, जातिवाद कौन फैलाता है? जरा जोर से बोलिए। नेता। कौन फैलाता है? किस लिए फैलाते हैं? सत्ता के लिए, वोट के लिए। सत्ता किस लिए चाहिए? लूटने के लिए, नोट के लिए। जातिवाद फैलाते हैं वोट के लिए, वोट चाहिए नोट के लिए। भाषा का जहर घोलते हैं किसके लिए? वोट के लिए। और वोट क्यों चाहिए? नोट के लिए। नोट के लिए। तमिल बनाम बिहारी, तमिल बनाम या महाराष्ट्रियन बनाम हिंदू, या जो भी है, उल्टा सीधा जो भी करते हैं रीजन के आधार पे, क्यों करते हैं? वोट के लिए। वोट क्यों चाहिए? नोट के लिए। व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट? नोट। अगर ऐसा सिस्टम बना दें कि ये नोट कमा ही ना पाए, और कमा भी ले तो खर्च न कर पाए, दिस इज द रिवर्स इंजीनियरिंग। या तो ऐसा सिस्टम हो कि नोट कमा ही ना पाए, या तो ऐसा सिस्टम हो नोट कमा तो ले लेकिन खर्च ही ना कर पाए। तो क्या रुकेगा? जातिवाद। फिर क्या रुकेगा? भाषावाद। फिर क्या रुकेगा? क्षेत्रवाद। ये जितनी समस्या, फिर क्या रुकेगा? माओवाद, नक्सलवाद, खालिस्तान, सारी समस्या रुकेगी कि नहीं रुकेगी? इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपना एग्जांपल। I filed a PL in Supreme Court. Please, because justice system is very slow, please constitute a special courts for MLAs and MPs. Because MLAs and MPs are honorable, they don't have very much time to go 20 years in the court. So please, you direct the high courts to constitute a special court for MLAs and MPs to decide their cases within one year. Supreme Court in 2017, Justice Gogoi passed a landmark judgment. He directed all the state governments, all the high courts, please constitute a special court and decide the cases of MLAs and MPs within 1 year. अब तक 200 सांसद और विधायक को सजा हो चुकी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो चुनाव लड़ने वाले थे, अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे उनका मुकदमा 50 साल चलेगा। लेकिन गलती से अगर सांसद विधायक हो गए तो मुकदमा, और उनको पता है सजा होनी। आप लोग दिल्ली में सुनते होंगे राउज एवेन्यू कोर्ट, सुनते होंगे ना? सिसोदिया जी का आजकल चल रहा है, पढ़ा सुना होगा।
वो राहुल से बनी कोर्ट भी हमारे पीएलपी बनी हो, ऐसे इधर चेन्नई में भी बनी है, पूरे देश में बनी, मदुरई में बनी है, पूरे देश भर बनी है, लगभग 400 कोर्ट बनी हुई है, अब तक बन चुकी है एमएलए एमपीज के लिए। सो दिस इज द रिवर्स इंजीनियरिंग। अब वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते कि 20-50 करोड़ खर्च करेंगे, सांसद विधायक बन जाएंगे, जो मुकदमा 50 साल चलना था वो 1 साल में खत्म हो जाएगा, 1 साल में खत्म हो जाएगा तो सजा हो जाएगी, सजा हो जाएगी तो 6 साल के लिए जेल चले जाएंगे या 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे। सो दिस इज द वे। इनफैक्ट द बिगेस्ट थ्रेट द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस for us is the slow justice system, the ineffective, outdated colonial laws. मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, उन्होंने 1,500 से ज्यादा अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए हैं, लेकिन एक बार आप लोग 15 अगस्त का उनका स्पीच सुनना। 15 अगस्त के दिन बोला था उन्होंने, हमें गुलामी की एक एक निशानी को खत्म करना है। मेरा मोबाइल है नहीं, मैं सुना देता यहां से, याद सुना आपने? 15 अगस्त को उन्होंने बोला था, हमें गुलामी की एक एक निशानी को खत्म करना है। गुलामी के कानून भी खत्म करने हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था भी खत्म करनी है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था भी खत्म करनी है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था भी खत्म करनी है। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं हमें गुलामी के नामो निशान मिटाना है, हमें नहीं चाहिए। आप जरा सोचो, हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ। उसमें एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। वहां पे एक मुर्शीद खान नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को 1470 में गिराया, मंदिर को लूटा, सोना चांदी बहुत था, सब लूट लिया, और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना के चला गया। एक दूसरा लुटेरा था मिर्जा, विंध्याचल मंदिर को लूटा और विंध्याचल को मिर्जापुर बना के चला गया। एक लुटेरा था जौना खां, परशुराम जी के पिताजी के नाम पे जो जमदग्निपुरम था उसको जौनपुर बना के चला गया। एक लुटेरा था मुजफ्फर खां, उसने राजा जनक सीता जी के पिताजी के नाम पे जो शहर था विदेह, उसको बिहार में मुजफ्फरपुर बना के चला गया। एक लुटेरा था होशियार खान, उसने विराट, याद है आपको राजा विराट के यहां जहां पांडव रुके थे, आपको याद होगा बाद में विराट नरेश ने अपनी बेटी का विवाह अभिमन्यु से किया था, उस विराट को होशियारपुर बना के चला गया। एक लुटेरा था गाजी, आया उसने गजपत को लूटा, गजपत को गाजियाबाद बना के चला गया। एक लुटेरा था फरीद खां, तिलप्रस को लूटा, नेम प्लेट बदल के उसको फरीदाबाद बना दिया। एक लुटेरा था बेगू खां, उसने अजात शत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। एक दरभंग खान, द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। शरीफुद्दीन, नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। हाजी शमसुद्दीन, हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खां, सिंघजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह, कर्नावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान खान ने भ्रगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। फरूख खान ने पंचाल, आपको याद है पंचाल नरेश, द्रौपदी का एक क्या नाम है? पांचाली। हमारे यहाँ कस्टम इतना बढ़िया था, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम होता था राज्य पे। गंधार की राजकुमारी गांधारी, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी, कौशल की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, पंचाल की राजकुमारी पांचाली। एक लुटेरा था फरूख खां, उसने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को जलाया था यूनिवर्सिटी को, उसने वहां बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूब नगर बना दिया। अली मीर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया।
इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। अब आप ये बताइए, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी आर ए सॉवरेन कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन इथोस, इंडियन कस्टम, फिर ये इन लुटेरों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियों को रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है क्या? जोर से बोलिए जरा। पिछले 75 साल में इस पे जो काम 75 साल पहले होना चाहिए था, जो काम 1950 में हो जाना चाहिए था, उस पे आज तक चर्चा नहीं हो पा रही है। ये उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाया क्या? नहीं निभाया। न तो एग्जीक्यूटिव ने निभाया, न लेजिस्लेचर ने निभाया, दुर्भाग्यवश जुडिशरी ने भी नहीं निभाया। ये कहने में हमें कोई तकलीफ नहीं है कि जो 3 दिन पहले जजमेंट आया है, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में पावर थी, वो यतो धर्मस्ततो जयः सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकते थे, रीनेमिंग कमीशन बना सकते थे, और ऐसे मैटर पे तो सुओ मोटो ले सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे मैटर पे पीआईएल की जरूरत ही नहीं है। ऐसे मैटर मैं पीआईएल क्यों करूं? आपकी ड्यूटी है, आपको इसी काम के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी गार्ड, खाना बनाने वाला नौकर, चार्टर्ड प्लेन मिलता है, इसी काम के लिए मिलता है। नोट नहीं मिलता है। और देने वाले कौन? देने वाले कौन? पब्लिक। आप लोगों के वेतन, आप लोग उनको सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हो, खुद को सिक्योरिटी हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहे हो, और उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहे हैं जिसकी शपथ लिया हुआ है। शपथ क्या ले रहे हैं? आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, I will uphold the constitutional morality. This constitution is the Indian constitution. This is their duty. This is not in fact your duty. This is not in fact my duty. This is the duty of the MLAs, MPs and judges. This is the duty of the executive, legislature and judiciary. वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। (1991) के बाद दूसरा एक कानून बनाया इन्होंने, पता नहीं इधर चर्चा है कि नहीं है, एक खबर आई थी लेकिन वक्फ एक्ट। तमिलनाडु से शुरू हुआ सब, तमिलनाडु से ही गया था, यहाँ पे गांव को पूरा गांव को उनके नाम से कर दिया। वक्फ एक्ट जैसा कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं, लेकिन भारत में बनाया गया। There is no procedure to find out the waqf property. There is no procedure to identify the waqf property. There is no procedure when and how to send the notice. But they are sending the notice. This waqf board has become the biggest tool for conversion, in fact. The biggest tool for conversion and extortion. बड़े लोगों के यहां तो नोटिस भेज के पैसा लेते हैं, गरीबों के यहां नोटिस भेज के कहते हैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। बोले साहब क्या करें, फिर कैसे करें? बोले कन्वर्ट हो जाओ। आपके तमिलनाडु का एक एरिया ऐसा भी तो होगा जो 400 किलोमीटर दूर होगा, कोई एक एरिया होगा, बॉर्डर के एरिया होगा। वक्फ बोर्ड का कहां पे है? चेन्नई में। 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति, मान लीजिए वो ट्राइबल एरिया से है, जिसने कभी अपना थाना भी नहीं देखा, अभी अपना कभी जिला भी नहीं देखा, उसको वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है कि ये तुम्हारी जमीन ना, तुम्हारी नहीं है, ये बाबर का घोड़ा यहां घास खाने आया था, हुमायूं का घोड़ा इधर घास खाने आया था, इसलिए तुम्हारी नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी होगी। दिस इज हैपनिंग इन इंडिया।
and we are saying no, we are very great country and we are so and we are a secular country. I challenge this act in the Supreme Court. Matter is going on there. I have challenged this also. You know, Waqf board, one member, one MLA, Muslim, one MP, Muslim, one IAS, Muslim, one town planner, Muslim, one advocate, Muslim, one mutawalli, Muslim. All the 7 members from one community. और वो आपके इस हॉल को नोटिस भेजेगा, तो नोटिस भेजने के लिए उसको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, वो सिंपली कह दे भाई ये जो अपना वैष्णव कॉलेज है तो वक्फ प्रॉपर्टी है। औरंगजेब की जो है, औरंगजेब का गधा इधर घास खाने आया था। अब आप दौड़ते रहिए, उसको कुछ नहीं करना, उसको सिंपल नोटिस भेज देना। सो व्हाट इज हैपनिंग, जहां खुद की प्रॉपर्टी पे नोटिस आ रहा है तो लोग फिर भी फाइट करते हैं, लेकिन जो बगल में पार्क है, ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, खेल का मैदान है, गोचर जमीन है, ऐसे गांव में बहुत सारी अलग अलग टाइप की जमीनें होती हैं जो पब्लिक लैंड होती हैं, नॉट ओन्ड बाय समवन, इट्स अ पब्लिक लैंड, गोचर, ऊसर, बंजर एटसेट्रा एटसेट्रा, फॉरेस्ट लैंड, दे इशू नोटिस, दिस इज द वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी, एंड if you will not respond within 1 month, it will become like a waqf property. And in Tamil Nadu it happens. 1500-year-old village temple, 1500-year-old temple was claimed that it's a waqf property. So this is happening. Whole village along with the temple. Similarly, one case, one girl committed suicide here. This is the name of Lavanya. आपको पता है लावण्या, I filed a PIL in Supreme Court for CBI investigation of this Lavanya suicide. I am not connecting the name. I think is nearby Madurai is the place. Lavanya. Tanjore. Yes, Tanjore. मेरे को उधर अखबार में पढ़ा कि एक लड़की को कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया. So I filed a PIL in the Supreme Court for CBI investigation of this Lavanya suicide case. Matter was going on in between Madurai bench, this Madurai High Court, director CBI investigation. But there were 2 more prayers that let there be a central law. What is happening presently? In the Indian Penal Code there is a chapter 15 named offence relating to religion. And see the lacuna. Chapter name is the offence relating to religion. If you say something about any religion, it's an offence. If you hurt religious feeling, it's an offence. But if you convert by intimidation, convert by threatening, convert by luring gift, it is not an offence. So I told the Supreme Court that see the gap, see the lacuna. And unfortunately, there was an anti-conversion law in Tamil Nadu. Government repealed that law. You know, there was a one anti-conversion law in Tamil Nadu, but government repealed it. I made all the state government party in Supreme Court. I requested the court that Supreme Court issued notice to central government, etc., etc. No state came to oppose my PIL. Only one state came. Only one state came. Yes. I don't know why. My demand is in Supreme Court. You direct the central government to amend this Indian Penal Code, make the conversion cognizable and non-bailable offence. This is my demand. I am fighting with the central government. Case is between me and central government, me and Home Ministry. What is the role of any state? But Tamil Nadu government intervened in my PIL and opposing my PIL. One Rajya Sabha MP, Mr. Wilson, used to appear in that case. And see the lacuna. एक सिपाही अपनी नौकरी में दूसरा काम नहीं कर सकता. इधर जो जर्नलिस्ट बैठे हैं,
ये अपनी नौकरी करते करते दूसरा काम नहीं कर सकते। कर सकते क्या सर? नहीं कर सकते। एक दरोगा अपनी नौकरी में दूसरा काम नहीं कर सकता। कलेक्टर, इंस्पेक्टर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। लेकिन सांसद और विधायक वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला लेते हैं। सांसद वाला वकालत भी कर सकते हैं, कंपनियों में डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं उसको कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं। मिस्टर विल्सन गेट्स सैलरी, पेंशन, बेंगलोर, सिक्योरिटी गार्ड, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट। फॉर व्हाट? टू protect our constitution, to protect Indian religion. But what he is doing? He is fighting for missionaries. He is fighting in support of missionaries. If there is a law, central law, what is the problem? Let it be a law. मैं कह रहा हूं अगर कन्वर्जन करने को फांसी देने का भी कानून बन जाए तो किसी क्या फर्क पड़ना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। He is my good friend. In fact, he is my good friend. Why good friend? Because I also practice in the Supreme Court. So I can say he is my good friend. But I don't know why Tamil Nadu government has instructed me to oppose my PL. I don't know why he is doing it. You know, if you weed out the corruption, 99% political party, आप क्या सोचते हो? भ्रष्टाचार खत्म तो सपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो बसपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो आम आदमी पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो आरजेडी खत्म। So biggest challenges for our constitutional ethos, constitutional morality is the corruption. Now we have to find out the ways, and I think that is the reverse engineering. What is the reverse engineering? ये पैसा लोग खाते हैं क्या? जरा बोलिए सब, खाते हैं कोई? नहीं खाते। क्या करते हैं पैसे को? बैंगलोर खरीदते हैं, बाहर खरीदते हैं, बड़े बड़े लग्जरी कार खरीदते हैं, आप नौकर के नाम पे कुछ खरीदते हैं, खाना बनाने वाले के नाम पे कुछ, ऐसे तो करते हैं। I have filed one PIL. I don't know when I will succeed. I have filed PIL to link property with Aadhaar. The day property will be linked with the Aadhaar, 25% corruption will be reduced. I don't know how much time it will take. The matter is going on. Second, I think first step was in 2015. 16, I hope it was done by Modi ji. I hope it will come again. You know, I don't know when come, I don't know. जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा ब्लैक मनी होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा करप्शन होता है। भारत में 80% लोगों को पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। केवल 20% लोग हैं जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे। और जो लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ न कुछ है। तो 80% लोगों को 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जो 20% लोग ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? नहीं है। ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, देखते हैं कब बंद होती है। तो मुझे लगता है कि 25% भ्रष्टाचार वहीं खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, 25% भ्रष्टाचार वहीं खत्म हो जाएगा। और एक कानून जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, उससे बहुत लोग परेशान हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून न होने से और झूठ बोलने के खिलाफ कानून न होने से इस देश में झूठ परोसा जा रहा है। कभी आपने सोचा कि प्रधानमंत्री को कितनी बार बोला गया चौकीदार चोर है? कोई कानून, किसी की सजा हुई क्या?
नहीं हुई। पहले कहते थे टाटा बिरला चोर हैं, किसी को सजा हुई? नहीं हुई। फिर कहते हैं अदानी अंबानी चोर हैं, किसी को सजा हुई? नहीं। हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो झूठ बोलने किसी को सजा दे पाए। इतनी बार से हमारे बिजनेसमैन को कोई चोर बोल देता है। जिस व्यक्ति ने इस देश में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, रोजगार दिया हुआ है, उसको कोई भी चूतिया टाइप का आदमी कहता है तो चोर है। अदानी चोर है, अंबानी चोर है। अदानी अंबानी का नौकरी करने लायक भी नहीं हो, लेकिन कहता है चोर है। और अदानी अंबानी मजबूर है कि उसके खिलाफ एक शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका में जाके अदानी ने कार्रवाई किया है, लेकिन भारत में जो लोग अदानी को चोर कर रहे थे वो एफआईआर नहीं करा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है नहीं, झूठ बोलने का कोई कानून है नहीं। ऐसे में बहुत ज्यादा हमारा जो बिजनेस क्लास है ना, बहुत परेशान है। खासतौर पर प्रोमिनेंट लोग बहुत परेशान है। एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, इस टाइप की घटनाएं बंद होंगी, दहेज के फालतू मुकदमे बंद होंगे, रेप के फालतू मुकदमे बंद होंगे, छेड़छाड़ के फालतू मुकदमे बंद होंगे, जस्टिस सिस्टम स्पीडी हो जाएगा, और सबसे बड़ा कि जो झूठे आरोप लगाते हैं वो बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है ये ठीक हो जाएगा, इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी चीजों पे सुओ मोटो लेते हैं, लेकिन जस्टिस सिस्टम को स्पीडी करने के लिए कभी सुओ मोटो नहीं लेते। ये उनकी ड्यूटी है। ये तो धर्मस्ततो जय कुर्सी पे लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते कुर्सी पे लिखा हुआ है, लेकिन न सत्य जीत पा रहा है न धर्म जीत पा रहा है। देखते देखते सत्य को जीतने में 50 साल लग रहा है, धर्म को जीतने में 50 साल लग रहा है, 40 साल लग रहा है, फिर काहे का ये तो धर्मस्ततो जय। आशा करता हूं कि जिस तरीके का एक मूवमेंट शुरू हुआ है राइट टू जस्टिस का, शायद पूरे देश में हर जगह से आवाज आएगी कि हमें जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट डिग्निटी, वी वांट आइडेंटिटी, वी वांट आवर राइट टू नो, वी वांट आवर राइट टू रिलीजन। I hope that very soon we'll see some changes in the judiciary also. Some changes throughout the country. आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट अगर ले सके।